हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो आई एम बैक विद योर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। ठीक है, आई होप आपकी प्रैक्टिस जो है अच्छी चल रही होगी, आपकी रिवीजन अच्छी चल रही होगी। इट्स टाइम टू बकल अप। ठीक है, टाइम टू प्रैक्टिस थिंग्स। ठीक है, अगर जिन बच्चों का सिलेबस अभी तक कवर नहीं हुआ है, सो पुल अप योर सॉक्स एंड आपको बकल अप करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इट्स टाइम फॉर रिवीजन, क्योंकि आपका सिलेबस जो है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का था उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। सो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, सो मेक श्योर आपका टाइम पे सिलेबस हो जाए, सो दैट आप रिवीजन कर सको और प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दिस इज योर प्रैक्टिस सेट नंबर 3, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट सेज which of the following greenhouse gas has the highest atmospheric lifetime? ठीक है, so your options are CFC, nitrous oxide, methane या फिर carbon tetrafluoride. So you can mark your answer. So the greenhouse gas which has the highest atmospheric lifetime is carbon tetrafluoride, option number D. ठीक है, moving on to the next one. The toxicity of dash leads to liver cirrhosis. ठीक है, liver cirrhosis के लिए किसकी जो टॉक्सिसिटी अगर वो लीड हो जाए, एक नॉर्मल लेवल से एक्सीड हो जाए, तो लिवर साइरोसिस होता है। ऑप्शन ए इज आयरन, ऑप्शन बी इज मर्क्यूरी, ऑप्शन सी इज कॉपर या ऑप्शन डी लेड। इट्स फॉर लिवर साइरोसिस। मार्क योर आंसर and the right answer is the toxicity of copper leads to liver cirrhosis. Option number C is correct. Next is question number 3. Which of the following devices can be used to measure ozone in the stratosphere from the ground? So your options are: option A is spectrometer, option B photometer, ऑप्शन सी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फिर ऑप्शन डी स्पेक्ट्रोओजोनोमीटर. सो यू कैन मार्क योर आंसर and the right answer is the device which can be used to measure the ozone in stratosphere from the ground is spectrophotometer. Option C is correct. Moving to the next one. Dash is the rate of production of organic matter by consumers. Option A is primary productivity, option B is secondary productivity, option C net primary productivity and option D is gross primary productivity. So क्या बोलेंगे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को बाय कंज्यूमर्स? So it's actually your secondary productivity. Secondary productivity is the rate of production of organic matter by consumer. Option number B is correct. Next is an element X is soft and can be cut with a knife. This is very reactive to air and cannot be kept open in air. It reacts vigorously with water. Identify X. ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं. ठीक है, दिस इज इजी वन. ठीक है, इस तरह के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ पे आपको एलिमेंट की प्रॉपर्टी दी जाएगी एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट एलिमेंट. ठीक है, सो योर ऑप्शंस आर मैग्नीशियम, यस मैग्नीशियम, सॉरी ऑप्शन ए इज मैग्नीशियम, ऑप्शन बी इज सोडियम, option C is phosphorus and option D is calcium. ठीक है, so you can mark your answer and the right answer is sodium. Sodium is actually soft and it can be cut with a knife, and sodium is very reactive to air and can't be kept
in open air, ठीक है, and it reacts vigorously with water. So these are the properties of sodium. So option B is correct. Next is, which non-conventional source of energy uses the energy mass equation to generate electricity, ठीक है. एनर्जी मास इक्वेशन जो है कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करता है, दैट इज आपको पता होगा, ठीक है, हमने पढ़ा, ये पढ़ा भी हुआ है. ऑप्शन ए सोलर सेल्स, ऑप्शन बी न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन सी टाइडल एनर्जी, ऑप्शन डी जियोथर्मल एनर्जी. सो यू कैन मार्क योर आंसर. And the right answer is option number B, that is nuclear energy, ठीक है. And write down in the comment section the equation for energy mass, ठीक है, जो energy mass equation है आप comment section में लिख के बताओ ये, ठीक है. Next is, which of the following figures correctly represents uniform motion of a moving object. So आपको कुछ ग्राफ्स बताऊंगी, आपको बताना है कि यूनिफॉर्म मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट क्या कौन सा बता रहा है ग्राफ. सो दीज आर योर ग्राफ्स. ऑप्शन ए इट्स अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, एंड इट्स अ स्ट्रेट लाइन. इन ऑप्शन बी इट्स अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, एंड इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है. ऑप्शन सी इज अगेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, एंड दिस इज योर ग्राफ. And option D distance time graph, the line is parallel to x-axis, ठीक है. सो आपको बताना है कि कौन सा फिगर रिप्रेजेंट करिए यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है. सो यू कैन मार्क योर आंसर. दीज आर द 4 graphs एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है. So option A is correct. Next is, the substance which have a large number of free electrons and offer a low resistance are called, ठीक है, जो low resistance करे और जिसके पास large number of free electrons हो वो क्या होते हैं, insulators, inductors, semiconductor, या फिर ऑप्शन नंबर डी conductors. So you can mark your answer. And the right answer is option number D, conductors. Conductors are means ये allow करते हैं to flow electricity to easily pass through them, ठीक है. ये इनकी लो रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, एंड इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है. सो उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स. ऑप्शन नंबर डी. Next is, exposure of silver chloride to sunlight for a long duration turns gray due to, ठीक है. अगर हम सिल्वर क्लोराइड को ज़्यादा देर तक सनलाइट में रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो ग्रे कलर का हो जाएगा. वो ग्रे कलर का क्यों होगा, इट्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, और इट इज ड्यू टू द सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड. Option C, decomposition of chlorine gas from silver chloride, या option D is oxidation of silver chloride. So for this आपको केमिकल इक्वेशन अच्छे से टॉपिक पढ़ना है. डायरेक्ट हो सकता है इक्वेशंस ना आए, बैलेंसिंग के लिए आ जाए, या फिर इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए. किसी भी तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा सकता है, रिएक्टेंट पूछ सकता है, प्रोडक्ट्स पूछ सकता है, ठीक है. और अगर किसी रिएक्शन में कलर चेंज हो रहा है, जैसे इसमें ग्रे हो रहा है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रे हो रहा है तो किसकी फॉर्मेशन की वजह से वो ग्रे हो रहा है, या अगर कलर चेंज हो रहा है तो किसकी फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है, और अगर रिएक्शन हो रही है तो वो किस टाइप की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन. सो ये सारे बेसिक क्वेश्चन है, एक रिएक्शन से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है. सो फॉर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन turns gray due to the formation of silver by decomposition of silver chloride. So option number A is correct. Next is, the lungs are located in the dash cavity and are surrounded by the dash. Option A is abdomen and peritoneum.
ऑप्शन बी इज एब्डोमेन एंड पेरिकॉन्ड्रियम, ऑप्शन सी इज thorax and pericardium, and option D is thorax and pleural membrane. So you can mark your answer. This is from your respiration topic. So the right answer is the lungs are located in thorax and thoracic cavity and are surrounded by the pleural membrane. Option number D is correct. ठीक है. आई होप आपके सारे भी जितने भी टॉपिक्स थे वो अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे. ठीक है. और आपको पता चला होगा कि वेयर यू स्टैंड, आपको कितना रिवीजन का और ज़रूरत है. ठीक है. कौन सा टॉपिक आपका स्किप है, कौन सा टॉपिक आपको भूल रहा है. ठीक है. इन सब का आइडिया हो गया तब भी हम प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है. इट्स नॉट अबाउट कि क्वेश्चन ईजी थे या डिफिकल्ट थे. इट्स कि आपको कितनी देर तक याद है. अगर कोई चीज़ आपको याद आती है तो वही क्वेश्चन आपको ईजी लगते हैं, कोई चीज़ भूल जाती है तो वही क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाते हैं. ठीक है. सो इट्स जस्ट कि आपको पता चले कि आपका प्रैक्टिस किधर जा रहा है. ठीक है. आज के लिए इतना ही रखते हैं. ठीक है. आई होप यू स्कोर्ड वेल. थैंक यू क्लास.